Hello students, I Pramod sir once again welcomes you in 7th standard maths period. So students, now we are going to start our second lesson, that is fractions. So students, regarding fractions you know up to 6th standard, but still let us see. Now students, fraction, it is nothing but a number. Fraction is also a number which can be write in the form of a upon b. A upon b, where a and b, these two are natural numbers. Where a and b are natural numbers. Here a is said to be numerator, you know it, and b is said to be denominator of the number. And in this sense, a upon b is a fraction. Okay students, now for example, if we want to take some examples of fractions, so students, you can surely say that 2 upon 3, 9 upon 5, 6 whole 1 upon 2, all these are fractions. All these are fractions. Now students, regarding its specification, let us see. So students, the first topic here is like and unlike fractions. तो स्टूडेंट्स, जब कभी भी like और unlike ये वर्ड आते हैं, तो इसमें फ्रैक्शन में यू यूज टू नो दैट अगर मैंने 5-6 अगर एग्जांपल लिखे, सपोज यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कुछ एग्जांपल, 3 upon 7, 9 upon 5, 6 upon 7, 3 upon 2 and 4 upon 7 and 8 upon say 4. Okay, we can take 9. Okay, so all these are fractions. Okay students, now अगर मुझे like fractions देखना है, if I want to choose like fractions among these fractions, then students look here, the denominators here are same. यहाँ पर मैंने जो 3 नंबर्स लिए हैं, 3 फ्रैक्शंस जो है उनके डिनोमिनेटर्स सेम हैं. सो स्टूडेंट्स, लाइक फ्रैक्शंस कौन से होंगे? द फ्रैक्शंस with the denominator same or equal. ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर्स क्या है, इक्वल है या सेम है, उनको हम क्या बोलेंगे? लाइक फ्रैक्शंस. एंड स्टूडेंट्स, रिगार्डिंग अनलाइक, it's very easy now. If the denominators are not same, I can say 8 by 9 and 9 by 5. The denominators are not same. I can say 9 by 5 and 3 by 2. These are also unlike fractions. I can say 8 by 9, 9 by 5 and 3 by 2 are unlike fractions. Like this. अगर denominator same है, then students like fractions होंगे वो. If not, then naturally those fractions will be unlike fractions. Now students, let us see proper fraction. Students, हमें पता है छोटे बच्चे क्या करते हैं कि जब कभी भी वो रेत का टीला बनाते हैं, तो वो रेत से ऐसा एक कोनिकल शेप का अगर हमने पोर्शन बनाया तो ये टिक के रहेगा, बराबर है, ये प्रॉपर लगता है हमें, ऐसा तो हम बना पाएंगे विद द हेल्प ऑफ सैंड, राइट. मगर वही अगर मैंने अगर ऐसा उल्टा अगर बनाने की अगर कोशिश की तो वो नहीं रहेगा, बराबर है. सैंड का मैं बात कर रहा हूँ, सैंड का अगर मुझे एक ऐसा कोनिकल शेप बनाने का रहा तो ऐसा हम बना पाएंगे, ऐसा तो नहीं बना पाएंगे. सो स्टूडेंट्स, हियर व्हाई आई हैव गिवन दीज 2 एग्जांपल्स so that you should know how to differentiate proper fraction and improper fraction.
प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, प्रॉपर फ्रैक्शन में आप देखो यहाँ पर ये छोटे से लेकर बड़ा, यहाँ पर बड़ा है, यानी बेस कैसा है, बड़ा है, लार्जर है। सो स्टूडेंट्स, आई एम राइटिंग सम एग्जांपल्स। 2/3, 7/9, 1/4, 19/21. We can write here. You can see the denominators are greater than the numerator. That means numerator जो है वो छोटे है, किससे? डिनोमिनेटर से, राइट? यस स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर्स आर लेस देन डिनोमिनेटर्स, यानी ये प्रॉपर है। क्यों है? बिकॉज न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर कैसा है? बड़ा है, राइट? सो सच फ्रैक्शंस, ऐसे जो फ्रैक्शंस होते हैं, all these are examples. EG means example gratia, that is for example 2/3, 7/9, 1/4, 19/21 and so on. These all are proper fractions because their numerators are smaller than their denominator. उनके डिनोमिनेटर से छोटे हैं। कौन छोटे हैं स्टूडेंट्स? न्यूमरेटर छोटे हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हम अगर 1/4 अगर करके देखते हैं, 1/4, 1/4, तो आपको ध्यान में आएगा, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो आंसर जो है 0.25 आ रहा है। ऑफ कोर्स उतना ही आएगा। और 2/3 अगर कर रहे हैं, 2/3, तो ये 0 पॉइंट कुछ आएगा, राइट? 0 पॉइंट समथिंग, 0.666 ऐसे आएगा, राइट? दैट मीन्स व्हाट? वन thing we can notice very easily, that is in a proper fraction जो है, proper fraction is always less than 1. The value of proper fraction is always less than 1. ये जो वैल्यू होती है प्रॉपर फ्रैक्शन की, वो हमेशा कैसी होती है? 1 से छोटी ही होती है। नाउ स्टूडेंट्स, इसके अपोजिट देखो यहाँ पर, ऐसा तो हम रेत से नहीं बना पाएंगे, इन्वर्टेड कोन नहीं बना पाएंगे। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स? ये इम्प्रॉपर है। क्यों है? बिकॉज लार्जर पोर्शन इज इन द न्यूमरेटर एंड स्मॉलर इन द डिनोमिनेटर। दैट मीन्स व्हाट? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखता हूं स्टूडेंट्स 2/1 या फिर 4/3 या फिर 19/5 या 20/5, let it be, or 7 we can write, it's also a fraction. So all the fractions here you can see students, the denominators are smaller and numerators are greater. Here students, numerator are always greater than denominator. यहाँ पे स्टूडेंट्स हमेशा जो न्यूमरेटर होता है वो हमेशा क्या होता है स्टूडेंट्स? ग्रेटर होता है। न्यूमरेटर्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। अब सपोज स्टूडेंट ये 2/1 है, तो ऑफ कोर्स इसकी वैल्यू 2 आएगी, यानी ऑलवेज ग्रेटर देन 1 आएगा। जैसा 4/3 अगर है तो इसका आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली 1.33, राइट? दैट मीन्स ग्रेटर देन 1। दैट मीन्स व्हाट? ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं स्टूडेंट्स, द वैल्यू ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, IF मीन्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की हमेशा जो वैल्यू होती है स्टूडेंट्स, वो क्या होती है? ग्रेटर देन 1 होती है। सो स्टूडेंट्स, वंस अगेन I am going to differentiate you in between proper fractions and improper fractions. Proper fractions में numerator is smaller than denominator and its value is less than 1. In improper fractions students, the numerator is always greater than denominator and its the value of improper fraction is always greater than 1.
So students, I hope you understood all these examples, whatever I have written here. Now students, let us move forward for the next topic. Now students, you can see here mixed fraction. अब इसमें कैसा है स्टूडेंट कि ये मैंने लिख दिया 2.5, 2.5 हम बोलते हैं ना 2.5 किलो, तो उसका मतलब क्या होता है 2 और आधा, 2.5. सो ऑफ कोर्स इट इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन. ये क्या है स्टूडेंट्स? मिक्स्ड फ्रैक्शन है. अब क्वेश्चन ये रहता है कि इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसमें 2.5 में क्या है? 2 प्लस आधा, यानी 2 पार्ट्स प्लस हाफ पार्ट, राइट. इसमें 2 जो है वो क्या है स्टूडेंट्स? होल नंबर है. ये क्या है? होल नंबर, राइट. और ये जो है हाफ पार्ट होल नंबर है क्या? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट. ये होल नंबर नहीं है. देन व्हाट इज इट स्टूडेंट्स? अगर 2 ये अगर होल नंबर है तो ये दूसरा 1/2 क्या है? इट इज अ फ्रैक्शनल पार्ट. इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट. तो स्टूडेंट्स इसमें दोनों भी है, फ्रैक्शनल पार्ट भी है और होल नंबर भी है. दैट मीन्स it is mixed fraction. In mixed fraction, whole number is also there as well as fractional part is also there. Now students, I hope you know the step how to convert these mixed fractions. In mixed fractions को हम दूसरे fractions में कैसे convert कर सकते हैं देखेंगे अभी. 2 2 are 4. यहाँ पर क्या किया जाता है स्टूडेंट्स? अगर इसको हमको सॉल्व करना है तो 2 इंटू 2 ये प्लस 1 ये न्यूमरेटर और डिवाइडेड बाय ये जो है फ्रैक्शनल पार्ट का वो एज इट इज हम रखते हैं. नाउ स्टूडेंट्स 2 2 आर 4, 4 प्लस 1 5 डिवाइडेड बाय 2. नाउ स्टूडेंट्स यू कैन सी इट इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन and we convert that mixed fraction here into improper fraction. यानी हमने यहाँ पर क्या किया? mixed fraction का conversion किया improper fraction में, right students? So students, I hope you understood this topic also. Now, fraction in its simplest form. Fraction in its simplest form. ये simplest form क्या होता है? So students, for example, I am taking one example here. Suppose I have written 24 divided by 9. मैंने एक improper fraction, कौन सा भी ले सकते हैं, proper fraction भी ले सकते हैं या improper fraction भी. But I have taken an example that 24 upon 9 is here, right? Now students, I know that इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं, अगर मुझे सिंपलेस्ट फॉर्म चाहिए तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. सिंप्लीफाई अगर करता हूं तो ये 3 8 हो जाएगा और 9 है 3 3 यानी 3 3 कैंसल हो गए और मुझे क्या मिला? 8/3. यानी ये जो हमारा फ्रैक्शन था 24/9 उसको हमने सिंप्लीफाई किया. उसको सिंप्लीफाई करने के बाद में 8/3 हमको मिला और इसको मैं बोलता हूँ ये जो फ्रैक्शन है 8/3 ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है. 8/3 इज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म. और उसका रीजन क्या है? बिकॉज नो कॉमन मल्टीपल अदर देन 1. एक को छोड़ के कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं चाहिए. कहां पर? इन द न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर. इफ आई एम सेइंग दैट a upon b is in its simplest form, right? What I mean to say students, if I am saying a upon b is in its simplest form, that means students in the numerator part a
and the denominator part b, there is no common multiple other than 1, यानी 1 को छोड़ के इसमें कॉमन मल्टीपल नहीं है। लाइक 8/3 देखो स्टूडेंट्स, 8 यानी 8 1 जार 8 होता है और 3 यानी 3 1 जार 3, और कोई कॉमन है ही नहीं। मगर इसको हम बोल पाते थे क्या 24/9 को? नहीं, बिकॉज 3 वॉज कॉमन देयर। यू कैन सी 24 और 9 को मैं नहीं बोल सकता हूँ इन इज सिंपलेस्ट फॉर्म, बिकॉज एक को छोड़ के 3 भी कॉमन है, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। अगर मुझे क्वेश्चन आया कि सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो और मैंने आंसर, फाइनल आंसर ये लिख के रख दिया, तो आई विल नॉट गेट मार्क्स, बिकॉज सिंपलेस्ट फॉर्म इज द फॉर्म वेयर देयर इज नो कॉमन मल्टीपल other than 1 in the numerator as well as the denominator. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पार्ट में 1 को छोड़ के कॉमन मल्टीपल बोल सकते हो आप या फैक्टर बोल सकते हो। You can use the word factor also. No common factor other than 1. यानी a और b अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो उनमें 1 को छोड़ के एक भी कॉमन फैक्टर नहीं है। Now students, moving further, let us see equivalent fractions, right? Now students, equivalent fractions हम किसको बोलेंगे? Now I am going to take an example. Let us take one of the simplest example here. 2/5 को मैंने ले लिया, ठीक है। अभी मैं 2 और 5 इनके न्यूमरेटर्स में 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी 3/3 से, तो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? 2 3 जार 6 और 5 3 जार 15, ठीक है। सपोज मैंने 2/5 ये जो है सेम, यहाँ पर मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर भी 7 से, क्या मिलेगा हमको? 2 7 जार 14 और 5 7 जार 35। तो स्टूडेंट्स, व्हाट कैन वी से? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हम किसको बोलेंगे? जिनकी वैल्यू क्या होंगी? इक्वल होगी। जिनकी वैल्यू क्या होगी? इक्वल होंगी, उनको हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। सो स्टूडेंट्स, हियर 2/5 6/15, 2/5 का ही मतलब क्या है स्टूडेंट्स? 6/15, और 2/5 का ही मतलब क्या है? 14/35। ऑल दीज 3 इक्वेशंस, 3 नहीं, ऐसे तो इनफाइनाइट हम बना सकते हैं, राइट? तो हियर दीज 3 इक्वेशंस, what I am going to say, these 3 equations are said to be equivalent, these 3 fractions are said to be equivalent fractions. The reason students we can see here, अगर हमने इसके बारे में सोचा, ये तो है सिंपलेस्ट फॉर्म में, राइट? अब 6 और 15 स्टूडेंट 3 कॉमन है दोनों में, 3 2 जार 6, 3 5 जार 15। यहाँ पर स्टूडेंट 7 कॉमन है, 7 2 जार 12, 7 5 जार 35। यू कैन सी 2/5 2/5 2/5, the value is same. If we solve them, simplify them, all the fractions, and if we are getting the same value, that means those fractions are equivalent fractions. So students, आप टेक्स्ट बुक में ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि C/D इक्वल्स टू M इंटू A है या फिर M इंटू B है। देखो M ये कॉमन है, राइट? यानी M जो है वो एनी इंटीजर लिया है, राइट? और ये दोनों अगर इक्वल है, और ये दोनों अगर क्या है? इक्वल है, तो C/D और A/B को हम क्या बोल सकते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हम बोल सकते हैं। एंड रिगार्डिंग दैट यू कैन टेक it as an example. So students, I hope you understood these equivalent fractions also. Now students, some important topics are here. Let us see. So first of all students, now the multiplication of fractions we have to see. Multiplications of fractions.
Here students, the first topic, three categories are here. So whole number and a fraction. Whole number का जो multiplication है, we have to do it with fraction. So students, let us take an example. Students, I want to inform you that you have to take out notes from the textbook. Textbook में आपको ये सब मिल जाएगा. तो उसमें से जितने भी मैंने फ्रैक्शन से लेकर जो भी मैं पूरे टॉपिक्स लेने वाला हूँ, regarding that you have to take out notes and write down into your notebook. So students, you can see here multiplication now, right? What we are going to see, whole number and a fraction. So let us take one of the examples students here. Example ले लेते हैं इसका. With the help of figure I am going to इक्वल मैंने 4 पार्ट्स गिरा दिए स्टूडेंट्स, राइट? हाउ मेनी पार्ट्स? 4 पार्ट्स. और उसका शेड कर रहा हूं मैं एक पार्ट हर एक का. ओके ओके. और ये कितना है? ये पोर्शन है 1/4 बिकॉज 1 आउट ऑफ 4. हियर आल्सो 1/4. Here also 1/4. इनकी अगर मैं एडिशन करता हूँ स्टूडेंट्स, यानी 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, तो हमको फिगर कैसी मिलेंगी स्टूडेंट्स? कितने पार्ट भर के रहेंगे? 1 2 3 पार्ट. 1 2 3 पार्ट्स. ये 3 पार्ट हमको मिलेंगे, राइट? सो आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स? 3/4. 4 4 4 डिनोमिनेटर से 1 plus 1 plus 1 3. So it is addition, right? But if we want to multiply here, what can we do? 1 2 3, ये मैंने एक होल नंबर ले लिया. कितना लिया? 3. और हर एक में सेम नंबर है. कौन सा? Into 1/4. 1/4 of 3, right? 3 into 1/4. So students, what will we get? 3 into 1, 3 numerator into numerator and denominator as it is, right? So students, ये अगर इसको मैंने 3 होल पार्ट्स अगर ले लिए और हर एक पार्ट अगर 1/4 का है तो मैं प्रोडक्ट कर सकता हूँ. You can see here it is a whole number and 1/4 is a fraction, right students? I hope we can you can solve such multiplication very very easily. Now fraction with operator of. Next topic है students, fractions with operator of. So for that students, I am going to take some example here. अगर मैं बोलता हूँ स्टूडेंट्स कि मैथमेटिकल लैंग्वेज में सपोज मेरे पास 500 रुपी है. आई हैव 500 रुपीज. मेरे पास कितने रुपीज है स्टूडेंट्स? 500 रुपीज है. तो 500 रुपी में से सपोज ये पूरा 500 रुपी है, ठीक है? 500 रुपी में से 1/5 पार्ट, यानी ये 5 पार्ट में से एक पार्ट, मैंने उसके 5 पार्ट गिरा है, एक पार्ट मैं ये किसी को दे रहा हूँ, ठीक है? आई एम गिविंग दिस पार्ट. इट इज 1/5 पार्ट मैं दे रहा हूँ. इसका मतलब मैं कितने रुपए उनको दे रहा हूँ? तो ये सिंपल बात है. 5 पार्ट यानी 100 का एक पार्ट हो जाएगा, राइट स्टूडेंट? तो मैं कितने रुपए दूंगा फिर? 100 रुपए दूंगा, राइट? सो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर ऑपरेटर ऑफ का यूज करके क्या बोल सकते हैं? 1/5 ऑफ 500. क्या बोल सकते हैं? 1/5 ऑफ 500, यानी 500 रुपए का कौन सा पार्ट? 1/5 पार्ट अगर मैं दे रहा हूं तो लेट अस ट्राई टू कैलकुलेट नाउ. 1/5 and in mathematics students this of means multiplication. ऑफ का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? मल्टीप्लीकेशन. into 500.
So students, you can see 500 into 1, 500 divided by 5. Certainly what will we get? 100. तो हमको ऑटोमेटिकली क्या मिल जाएगा? 100 मिल जाएगा. Right students? So I hope you understood this part also. Now students, the third and last part of multiplication, what will be it? Multiplication of a fraction by a fraction. यानी दोनों भी क्या ले रहे हैं स्टूडेंट्स? हम फ्रैक्शंस ले रहे हैं. सो स्टूडेंट्स, इन दैट सिचुएशन क्या होता है वो देखेंगे. मल्टीप्लाइंग अ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन. एक फ्रैक्शन को दूसरे और फ्रैक्शन से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो इसमें बहुत सिंपल लॉजिक है स्टूडेंट्स. लेट अस टेक सम एग्जांपल्स. ये 3/2 एक मैंने फ्रैक्शन लिया और दूसरा लिया 7/5. व्हाट विल हैपन? व्हाट विल बी देयर? मल्टीप्लिकेशन स्टूडेंट्स. सो इट्स वेरी इजी. न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, 3 7s are 21. डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, 2 5s are 10. यस, यहाँ पर अभी 1 को छोड़ के कोई कॉमन नहीं है. इट इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म, सो नो नीड टू, मीन्स इट इज इन ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म. तो ये फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा. नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जांपल. 4/5 इंटू 15/7. अब ये स्टूडेंट्स, ये 4 और 15 इनका प्रोडक्ट होगा, बराबर है, और 5 और 7 का. बट स्टूडेंट्स, यू कैन सी हियर 5 और 15, इसमें 5 कॉमन है, तो 5 को हम कैंसिल कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, ये ऐसा भी आप छुड़ा सकते हो. 5 1s are 5, 5 3s are 15, एंड लेटर ऑन 4 into 3 12, 1 into 7 7. ऐसा भी छुड़ा सकते हैं स्टूडेंट्स, या फिर directly you can solve like this also. 5 1s are 5, 5 3s are 15. Numerator part or denominator part, if multiplication is there we can divide if there is any common factor, right? So students, 4 3s are 12 and 1 7s are 7. So students, I hope you understood all the things I explained you up till now. Okay students, keep it in your mind that you have to take out notes from the textbook and write into your notebook. Okay students, take care, have a nice time, bye bye.